इज लेफ्ट इन शॉर्ट। आइए जी, विदाउट एनी फर्दर अडू स्टार्ट करते हैं प्रेसी के बारे में। आज हमने प्रेसी को डिस्कस करना है। ठीक है, ये प्रेसी मैंने रैंडमली चुनी है, किसी पास्ट पेपर से नहीं है। करेक्शंस हमने करनी है। करेक्शंस मैंने पास्ट पेपर से चूज किए हैं 2023 से। दो तीन मैं आपको करवा दूंगा, बाकी आपने खुद कर लेनी है। प्रपोजिशंस 2023 से मैंने चूज की हैं। ये भी दो तीन मैं करवा दूंगा, बाकी देख लीजिएगा। देन ट्रांसलेशन है जी, ट्रांसलेशन आप खुद ही करेंगे। ट्रांसलेशन भी थोड़ा बहुत मैं आपको गाइड कर दूंगा। ठीक है। एंड देन कंप्रीहेंशन का आपका होमवर्क होगा। ठीक है। तो ये सारा रहेगा। कल सैटरडे है। कल हमारी ऐसे की क्लास हो जाएगी। अच्छा, आप सबकी प्रेसिज मैंने चेक करके आपको भेज दी थी, और आप सबको इंडिविजुअली मैंने वॉइस मैसेजेस भी कर दिए थे, जिनकी प्रेसी में मुझे कोई एरर नजर आया था। आप में से कोई रह तो नहीं था क्या? मुझे बताइएगा प्लीज। कोई भी अगर आप में से रह गया हो तो। अगर मैंने किसी को वॉइस मैसेज नहीं किया, या किसी का कोई काम यानी प्रेसी से रिलेटेड अगर चेक नहीं हुआ, तो मैं। वैसे ही चेक करें। आपकी प्रेसी नहीं चेक हुई जरा? नहीं सर। ठीक है, मैं कर दूंगा क्लास के बाद, या सुबह तक मैं कर दूंगा। सर मेरी अनचेक्ड है, आपकी भी ठीक है जी। और राइट, यानी दो स्टूडेंट्स हैं जिनकी प्रेसी अनचेक्ड है। वो सुबह तक आपकी चेक हो जाएंगी। ओके। बाकी सबको मैंने वॉइस मैसेज कर दिया था। तो आइए जी, प्रेसी को स्टार्ट करते हैं। कौन आप में से पढ़ेगा? अफादिया, आप पढ़ें बेटा। प्रेसी को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। प्रेसी 250 वर्ड्स की है, एक शॉर्ट प्रेसी है। ठीक है। तो देख लेते हैं जी प्रेसी के क्या मामलात हैं। आइए पढ़ना स्टार्ट करते हैं जी, बेटा पढ़िएगा। Human civilization has always prided itself on its capacity to innovate, yet every technological leap has carried within it the seeds of unforeseen consequences. The invention of the printing press Baptized. democratized democratized knowledge, but also accelerated the spread of propaganda. The Industrial Revolution transformed economies while simultaneously giving rise to environmental degradation and exploitative labor systems. हम्म। Today, artificial intelligence promises unprecedented efficiency, precision, and convenience, but it also raises profound ethical, social, and economic questions that societies have only begun to confront. ओके, पढ़ते जाएं आगे बेटा, पढ़ते जाएं। Machines capable of learning and decision making challenge traditional notions of human uniqueness, while automation threatens to displace millions of workers whose skills may become obsolete. ठीक है, आगे At पढ़ते। at the same time, the vast accumulation of personal data by governments and corporations has created systems of surveillance but blur the distinction between security and intrusion. ऑलराइट, Iron- थैंक यू अच्छा फादिया आपका पढ़ने का। आइए आगे हम किसी और को मौका देते हैं। ऐसा करो, हादिया आप पढ़ें जरा। जहां से फादिया ने छोड़ा वहां से पढ़ें। सर इंट्रूजन की जगह पे लिखा हुआ बोला। मुझे नहीं पता, आपको ओके पता सर, है? मिल गया। यस सर। Ironically, technologies designed to connect people have often fostered isolation, misinformation, and ideological polarization. Nevertheless, rejecting innovation altogether would be both impractical and undesirable, for scientific progress remains indispensable in addressing global challenges such as climate change, disease, and resource scarcity. The real dilemma, therefore, is not whether humanity should continue to innovate, but whether it possesses the moral wisdom, institutional foresight, and collective responsibility required to guide innovation towards the common good. बस बस History. बस 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 आदि, थैंक यू। ऑलराइट, Okay. असवद आप पढ़ना स्टार्ट करें। वेर इज असवद? असवद, जहां पर हादी ने छोड़ा वहां से पढ़ना तो शुरू करो। Foresight and collective responsibility required to guide innovation toward the common good. History repeatedly demonstrates that technology is neither inherently benevolent nor malevolent. Its ultimate impacts depends upon the principles, regulations, and values that govern its development and use. Unless ethical consideration evolve alongside sacrifice, advancement, humanity may discover too late that its greatest inventions have become the architects of its most enduring problems. ऑलराइट एवरीबॉडी, हमने यहाँ पर इस प्रेसी को पढ़ा। टाइम की किल्लत होने की वजह से एक ही दफा हम पढ़ेंगे।
स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर देखा कि किस तरीके से ह्यूमन सिविलाइजेशन की एक बहुत एक खूबी है, एक कैपेसिटी है कि वो इनोवेशंस की जानिब हमेशा मूव करते हैं। याद रखिएगा कि व्हेनेवर वी फेस एनी चैलेंज, तो उस चैलेंज के रिस्पॉन्स में हम इनोवेशन लेकर आते हैं। अच्छा, वो इनोवेशन बहुत बड़ी भी हो सकती है, वो इनोवेशन बहुत छोटी भी हो सकती है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स में हम ऐसा ही करते हैं कि व्हेनेवर वी आर फेसिंग एनी टाइप ऑफ चैलेंज, हम कोई ना कोई इनोवेशन लेकर आते हैं। ठीक है सर, मेरा ऐसे का टेस्ट, ऐसे का टेस्ट क्या मतलब? ऐसे अभी किसी का भी चेक नहीं हुआ रिमशा, जो अभी रिसेंटली किया है ऐसे किसी का भी चेक नहीं हुआ। ऑलराइट, प्लीज इधर फोकस कीजिए। अच्छा, सो क्या है कि यहाँ पर भी यही बात की जा रही है कि ह्यूमंस की एक कैपेसिटी है, इनहेरेंटली इनकी कैपेसिटी है कि ये इनोवेशंस की जानिब इनोवेशंस को इनकरेज करते हैं या इनोवेट करते हैं, और इसमें ये बहुत प्राइड भी लेते हैं। ठीक है, लेकिन जितने भी टेक्नोलॉजिकल स्टेप्स हमने आज तक किए हैं, ये जितने भी हमने टेक्नोलॉजिकल लीप्स को अडॉप्ट किया है, उनकी कोई ना कोई कॉन्सिक्वेंसेस रहे हैं। अच्छा, अब जब ये कॉन्सिक्वेंसेस की बात यहां पर करना स्टार्ट करता है, इस चीज को अंडरस्टैंड कीजिएगा। ये देखिए, लाइन अभी पढ़ी है फादिया ने, yet every technological leap has carried within it the seed of unforeseen consequences। अच्छा स्टूडेंट्स, अब याद रखिएगा कि इंग्लिश में ना क्या नाम है आपका, मनाहिल, मनाहिल बेटा, इंग्लिश में अनफोर्सीन कॉन्सिक्वेंसेस जो है ना, आम तौर पर ये नेगेटिव इंडिकेशंस हमें देता है। ठीक है, याद रखिएगा एवरीबॉडी प्लीज, इस चीज को जरा आपने समझना है। ठीक है, कि आपके पास अनफोर्सीन कॉन्सिक्वेंसेस पॉजिटिवली भी यूज हो जाता है, ऐसा नहीं है कि ये नहीं यूज होता, लेकिन पॉजिटिवली हमेशा ये माइनर टर्म्स में इस्तेमाल होता है, मेजॉरिटी में ये हमेशा नेगेटिव टर्म्स के लिए इस्तेमाल होगा। अच्छा, अब इसी चीज को, अब देखिए यहां से आपने इस चीज को थोड़ा समझना है। ठीक है, मैं आपको हर प्रेसी में ऐसे कुछ वर्ड्स बताता हूं जो कि हमें एक प्रेसी को अंडरस्टैंड करने में हेल्प कर सकते हैं। अब यहां से मैं अगर एक स्टूडेंट होऊंगा ना, तो मैंने अगर आगे नहीं पढ़ा फिलहाल, तो मैं मरियम यहां से अंडरस्टैंड कर जाऊंगा कि अच्छा जी, इसके बाद जरूर नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस आने वाले हैं। या अगर मैं थोड़ा जनरल बात करूं हादी, तो मैं अरिका बेटा सिंपल यहां पर बोल सकता हूं कि अनफोर्सीन कॉन्सिक्वेंसेस इस चीज की साफ वजाहत या रिफ्लेक्शन कर रही है कि इसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस तो आने ही वाले हैं, गो वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। ठीक है, और यही चीज ऑथर, अब ये चीज हमारे पास एक इंडिकेटर के तौर पर काम कर रही है। जरक मेरी बात समझ आ रही है इस वक्त आपको भी? मुझे बताइएगा। अब देखिए, यही चीज आगे एग्जामिनर करता है, वो क्या करता है, द इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस बताना शुरू हो जाता है कि आपके पास इनोवेशन हुई, पॉजिटिव इंपैक्ट आए, लेकिन एट द सेम टाइम आपके पास इकोनॉमिक नेगेटिव यानी नेगेटिव इंपैक्ट्स भी आए। ठीक है, ये देखिए, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, एक्सप्लॉइटेटिव लेबर सिस्टम। ठीक है, मेरा पॉइंट अंडरस्टैंड करने की कोशिश। अब देखें, मैं आपको दो चीजें बता दूं, अभी भी मैंने रिसेंटली बताया। सबसे पहले तो अनफोर्सीन कॉन्सिक्वेंसेस पॉजिटिवली इस्तेमाल होता है या नेगेटिवली इस्तेमाल होता है, प्लीज मुझे बताइएगा। जोया आप भी बताइए बेटा मुझे जरा, वर्दा लेट मी नो, फिजा, मरियम, अफादिया, जल्दी से जरा मुझे बताएं। नॉर्मली नेगेटिव के लिए होता है, लेकिन पॉजिटिव के लिए भी कर सकते हैं। मोस्टली ज्यादातर नेगेटिव। के लिए होता है ये। ठीक है, अब यहां पर भी देखें, बिल्कुल ऐसे ही हुआ, जहां पर एग्जामिनर ने एक पॉजिटिव इंपैक्ट दिया, उसने दो नेगेटिव दे रही हैं, तो इसका मतलब कि अनफोर्सीन आम तौर पे मनाहिल नेगेटिवली इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है जी सर जी। अब क्या है कि अगर हम इस चीज को थोड़ा सा अंडरस्टैंड और थोड़ा डिटेल में देखें, तो मुझे कोई बता सकता है कि ये देखें, यहां से ये जो एक पैसेज हमारा शुरू हुआ, यहां तक ये गया येलो वाला। अच्छा, ये इसका एक थीम है, यानी इसकी एक थीम बन सकती है। क्या इसकी थीम होगी? जरा इस हाईलाइटेड एरिया की मुझे जरा प्लीज थीम बताइए। व्हाट कुड बी द थीम और व्हाट शुड बी द थीम? क्या होनी चाहिए? अहमद आप मुझे बताओ यार, अहमद आजकल बड़ा बुझा बुझा रहता है, क्या रीजन है अहमद? बताओ यार जरा, इसकी क्या थीम हो सकती है? दूसरे भी बताएं, हम सबने भी पढ़ा रही का, क्या इसकी थीम हो सकती है बेटा, जरा लेट मी नो। अस्वद। हम्म। टेक्नोलॉजिकल नहीं, डेवलपमेंट की एक जो डेवलपमेंट है वो बेसिकली डबल एज सॉर्ड के तौर पर एक्ट कर रही है। अगर हमें बेनिफिट दे रही है तो हमें उसका नुकसान भी हो रहा है। ये तो आपने पूरे के पूरे प्रेसी की थीम बता दी है, लेकिन इस एरिया की, इस एरिया में स्पेसिफिकली क्या बात की जा रही है? ठीक है, डबल एज स्वॉर्ड क्या एक पूरा यहाँ पर एक मेन पैसेज का ये मेन थीम है, बट स्पेसिफिकली ये चार लाइनों में क्या बात की जा रही है? यू डूइंग अ गुड स्टफ, बट यहाँ पर इसे थोड़ा स्पेसिफाई करें जरा।
जी फिजा क्या बात हो सकती है? एहतशाम आप भी बताएं क्या बात यहाँ पर हो सकती है? जी जरक आप मुझे बताने की कोशिश तो करो जरा। वेर इज जरक? जरक क्या बात हो सकती है यहाँ पर? क्या पैसेज में? नूर बेटा लेट मी नो कि क्या यहाँ पर, क्या मैं यहाँ पर सिंपल बोल सकता हूँ? मुझे बताइएगा। कैन आई ट्राई? लेट मी ट्राई। क्या मैं कोशिश कर सकता हूँ कि यहाँ पर जो एक मेन थीम है वो है जो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, ठीक है? यदि टेक्नोलॉजिकल तरक्की तो हो रही है लेकिन साथ उसके हिस्टोरिकल कॉन्सिक्वेंसेस बताए गए हैं, या टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन को हिस्ट्री के साथ रिलेट किया जा रहा है। क्या मैं बता सकता? अब देखिए नेक्स्ट, अब इस चीज को जरा समझिएगा रिका। अब इसके बाद जो सारा डोमेन है वो उसने शिफ्ट कर दिया, और जहां पर पहले वो हिस्ट्री की बात बता रहा है, इसके फौरन बाद एग्जामिनर करंट टाइम्स पर ले गया। राइट? मेरी बात आप सबको समझ आ रही है? मुझे बताइएगा। चलिए ये फिर से हम थोड़ा पढ़ते हैं ताकि अभी करंट सिनेरियो के बारे में तो हमें पता चले। कौन पढ़ेगा? नूर आप पढ़ेंगी बेटा? कैन यू रीड दिस? जी सर। पढ़े। Human civilization has always prided itself on its capacity to innovate, yet every technological leap has carried within it the seeds of unforeseen consequences. The बेटा invention of the printing. जी नो, सर। नो नूर वेट वेट, ये वाला। टुडे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कैसे? बेटा ये येलो वाला नहीं पढ़ना, नेक्स्ट थीम पढ़िए। टुडे आर्टिफिशियल ओके इंटेलिजेंस। सर। Today, artificial intelligence promises unprecedented efficiency, precision, and convenience, but it also raises profound ethical, social, and economic questions that societies have only begun to confront. Machines capable of learning and decision making challenge traditional notions of human uniqueness, while automation threatens to displace millions of workers whose skills may become obsolete. At the same time, the vast accumulation of personal data by governments and corporations has created systems of surveillance हम्म। that blur the distinction between security and intrusion. Ironically, technologies designed to connect people have often fostered isolation, misinformation, and ideological polarization. यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, इनोवेशन के जितने भी करंट चैलेंजेस है वो बताए गए हैं। कि देखिए सबसे पहले यहाँ पर कहते हैं जी एथिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस, क्वेश्चंस रेज किए जा रहे हैं टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की वजह से, ठीक है? मशीन्स जो हैं, ठीक है, ये ऑटोमेटेड डिसीजन मेकिंग कर रही हैं कुछ इस तरीके से। मशीन्स केपेबल ऑफ लर्निंग एंड डिसीजन मेकिंग चैलेंज ट्रेडिशनल नॉर्म्स या नोशंस। उसके बाद कहता है जी ऑटोमेशन ने मिलियंस ऑफ पीपल को या वर्कर्स को डिस्प्लेस कर दिया है, ठीक है? साथ ही साथ एट द सेम टाइम वास्ट एक्यूमुलेशन ऑफ पर्सनल डेटा, ठीक है, बाय गवर्नमेंट्स एंड कॉर्पोरेशंस हैज क्रिएटेड सिस्टम ऑफ सर्विलेंस। हमारा पर्सनल डेटा जो है, वो हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है वो सारी की सारी कंप्रोमाइज हो रही है, आपको पता ही है, ठीक है? आयरॉनिकली द टेक्नोलॉजी डिजाइन टू कनेक्ट पीपल। अब यहाँ पर कहता है कि देखिए वही टेक्नोलॉजी जिसने लोगों को कनेक्ट करने के लिए बनाई गई थी, आज वही लोगों में मिस इन्फॉर्मेशन फैला रही है, आइसोलेशन लेकर आ रही है, डिविजन्स लेकर आ रही है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये सारे के सारे चैलेंज अगर हम इस टाइटल की, इस एरिया की अगर हम बात करते हैं, तो इस एरिया का या इस थीम का या इस पैसेज का, यानी यहां तक इस पैसेज का मतलब बनता है कि दीज आर द करंट चैलेंजेस दैट आर एसोसिएटेड विद आर्टिफिशियल विद इनोवेशन। मेरी बात आप सबको समझ आ रही है? मुझे बताइएगा स्टूडेंट्स। अब देखिए उसने स्टार्टिंग में हिस्ट्री बता दी, हिस्ट्री के बाद उसने क्या कर दिया कि करंट सिनेरियो बता दिया। इसके बाद आपने पढ़ा है, चलें ऐसा करें कि टेक सम टाइम, ठीक है, इसे पढ़िए, ठीक है? मैं आपको कुछ सेकंड्स दे, कुछ सेकंड्स में कोशिश करना है कि मुझे बता सकें कि अब ये जो सारा का सारा थीम है जो नेवरदलेस से स्टार्ट होकर एंड्योरिंग प्रॉब्लम्स पर जा रहा है मरियम, इसका क्या मतलब है? यानी ये क्या यहाँ पर बता रहा है, और इसका एक मेन थीम क्या हो सकता है? पहले थीम तो जरा मुझे इसके बारे में बताएं। एनीवन? टेक सम टाइम, 30 to 40 सेकेंड्स लीजिए। जरा आपने मुझे बताना, आई विल स्टार्ट दिस फ्रॉम यू दिस टाइम। ठीक है, चलें जी स्टार्ट करें जरा। इसे खुद पढ़ें, ठीक है? प्लीज टेक योर टाइम। वॉइस मैसेज पर नहीं या वॉइस पर नहीं, खुद पढ़िए इसे, ठीक है? इसे पढ़िए। एंड 1 मिनट ले लें जी, क्या याद, चलें 2 मिनट ले लें और बोलें। 8 बजे तक का टाइम ले लें, 8 बजे तक का टाइम ले लें, 2 मिनट ले लें एंड चलें। हादी मुझे थीम बताना, लैक ऑफ नहीं इकरा, ये नहीं है, गलत है, गलत है बेटा ये।
ऑलराइट, पैरल्स ऑफ एआई, नो, कोशिश करें जरा, गलत है इकरार बेटा, आपका भी गलत है, ट्राई अगेन प्लीज। ग्रोइंग नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ इनोवेशन, ठीक है, नहीं ये बेटा ठीक नहीं है अभी भी। इनएविटेबल इफेक्ट्स ऑफ एआई, सिर्फ एआई की बातें हो रही हैं जी, यहाँ पर सिर्फ एआई ही डिस्कस किया गया है। ओह माय गॉड, अफादिया क्या बेटा यहाँ पर मीनिंग बन रहा है? इनोवेशंस आर नीदर गुड नॉर बैड बट डिपेंड्स अपॉन प्रिंसिपल्स। मैं ये नहीं कह रहा कि ये ठीक है या नहीं, बट राइट नाउ आई एम जस्ट एक्सेप्टिंग। हाँ जी, अफादिया क्या बन रहा है? जोया आप भी बताइए बेटा, वर्दा, रिमशा ने बता दिया, नूर, निमरा, हादी, किंजा, इकरा, इकरा ने बता दिया, तशाम, इकरा बेटा फिर कोशिश करें, फिजा, मरिया, मरीका, फादिया जरा बता दें। सर रेट कर रही हूँ अभी। अच्छा, ऑलराइट, चले ये बनाएंगे आप खुद, अगर मैं आपको इसका होमवर्क थोड़ा दे दूं तो ये एंड वाला टाइटल, ये एंड वाले एरिया को खुद डिस्कस कर लेंगे प्रेसी में, अगर मैं आपको बता दूं 250 वर्ड्स की प्रेसी है जी, और आपका मैंने वर्ड्स का काउंट कभी टाइम बचा दिए, 250 है जी टोटल वर्ड्स, आप एक दफा काउंट कर लीजिएगा। 83 वर्ड्स की कोई आई गेस प्रेसिस की बनेगी, ठीक है। अच्छा जी, विद दैट बीइंग सेड, आइए जी टाइटल की जाने बढ़ते हैं। अब ये आपको मैंने समझा दी है प्रेसी, अब आपने खुद करनी है, 3-4 दफा और पढ़ेंगे ना तो यू विल गेट टू नो दिस। आगे बढ़ते हैं जी। इनोवेशंस, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, लैक ऑफ इमोशंस, जोया लिख रही है रेगुलेशंस एंड इनोवेशंस मस्ट बी डेवलप्ड, राइट, गुड, जोया ने अच्छा लिखा है। इनोवेशंस अलोंगसाइड मॉरल विजडम, गुड, फिजा, फिजा आजकल बड़ी ग्रोथ हो रही है, क्या बात है, बड़ी जल्दी ग्रोथ हो रही है, गुड वन बेटा वैसे, लेकिन एकदम में इतनी ग्रोथ। वर्दा लिख रही है इनोवेशंस डिपेंड अपॉन इट्स क्रिएटर्स एज दे बेनिफिट, ना, एथिकल रिक्वायरमेंट्स फॉर इनोवेशन, गुड, आदि गुड यार, 100% एक्यूरेट नहीं है, लेकिन ठीक है, इसे बेहतर किया जा सकता है, देयर इज अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट हादी, बट ठीक है स्टार्टर्स के लिए। ऑलराइट जी, सो आपने कोशिश क्या करनी है जरा कि इसके ऊपर खुद काम करें, ये कर लेंगे काम, बताइएगा। अब दो मैंने आपको थीम्स यहाँ पर बता दें, टोटल 3 थीम्स पर ये बेस करता था, यानी एक मेन जो इसका टॉपिक था वो डेवलपमेंट या इनोवेशंस था या टेक्नोलॉजिकल एनहांसमेंट, कुछ इस तरीके से, बट मैंने आपको यहाँ पर इसका 2 डोमेन्स बता दिए हैं, तीसरा अब आपने खुद करना है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब मुझे ये बताइए कि अगर आप इसकी प्रेसी करेंगे तो प्रेसी में सबसे टॉप पर आपने स्टार्टिंग पे क्या लिखते हैं, मुझे बता सकता है कोई? टाइटल नहीं, टाइटल के बाद जब आप प्रेसी स्टार्ट करते हैं तो जो फर्स्ट सेंटेंस होता है उसे क्या कहा जाता है? जरा जल्दी से मुझे बता दें, आई एम वेटिंग। हम्म, टॉपिक से डॉट, डॉट क्या होता है बेटा? वर्दा बेटा, व्हाट इज दिस? एंड हु इज मेकिंग सच अ नॉनसेंस इमोजी? प्लीज लेट मी नो, हु इज दिस मेकिंग सच अ लाफेबल एंड नॉनसेंस इमोजी? वी आर सिटिंग इन द सीरियस क्लास, वी नॉट हियर टू मेक एनी फन ऑफ एनीबडी। ये कौन कर रहा है जी? प्लीज रिमूव इट एवरीबडी, ये जिसने भी किया है, वर्दा प्लीज डिलीट योर कमेंट। आर यू स्टडिंग इन सीएसएस क्लास राइट, या हम किसी कोई मजाकिया शो में बैठे हुए हैं? प्लीज स्टूडेंट्स, हम इस चीज का तो थोड़ा ख्याल रखें। और वर्दा बेटा हम डॉट ऊपर लिखते हैं सबसे पहले, डॉट लिख दिए, चलें जी, ये डॉट लिख दिए और बोले प्रेस ही हो गई, व्हाट इज दिस बेटा? ये डिमांड ऑफ टॉपिक हम सबसे पहले ऊपर लिख, डिमांड ऑफ टॉपिक लिखा मैंने सर जी। डिमांड ऑफ टॉपिक भी नहीं हम लिखते, मैंने कभी नहीं आपको बताया कि हम डिमांड ऑफ टॉपिक हम टॉप पे लिखते हैं बताइएगा। आप तो भूलती जा रही हैं दिन ब दिन वर्दा, ये तो गलत है टोटली। नो बेटा, दिस इज नॉट रॉन्ग, आप, दिस इज नॉट राइट, दिस इज नॉट करेक्ट, आप दिन ब दिन एक रेड जोन में जा रही हैं, आई एम सॉरी टू से। ठीक है, आई नो, बट व्हाट डू यू मीन बाय डीओटी?
हम आइडेंटिशन नहीं बेटा, हम सबसे पहले जो लिखते हैं वो टॉपिक सेंटेंस होता है। याद आया? बिल्कुल। तो टॉपिक सेंटेंस आप लिखा करें। सबसे पहले टॉपिक सेंटेंस होता है जी, और ये टॉपिक सेंटेंस आपके पूरे के पूरे पैसेज की रिफ्लेक्शन होता है। चले, मुझे कोई बता सकता है कि इसका टॉपिक सेंटेंस क्या बनेगा? एनीवन? लेट अस मेक टॉपिक सेंटेंस। टॉपिक सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है मरियम, जो कि आपके पूरे की पूरी प्रेसी को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है रिमशा बेटा, प्रेसी के मेन आइडियाज को रिफ्लेक्ट करता है। सो यहाँ पर देखिए, हमने देखा कि सबसे पहले तो इनोवेशंस के बारे में थोड़ा हमने देखा। ठीक है, इसके करंट कॉन्सिक्वेंसेस को देखा। फिर हमने यहाँ पर कहीं पे वे फॉरवर्ड को भी थोड़ा बहुत देखा। ठीक है। सो देखा कि टेक्नोलॉजी के साथ आपके पास जो है जिम्मेदारी भी आती है। यहाँ पर कहीं पे हमने देखा एज इट इज पॉजिंग अ लॉट ऑफ चैलेंजेस, स्टिल यहाँ पर हमें कुछ वे फॉरवर्ड को अडॉप्ट करना चाहिए, कुछ ऐसे देखा। सो आइए थोड़ा इसके ऊपर जो है इसकी टॉपिक सेंटेंस बनाते हैं। जी, लेट अस मेक टॉपिक सेंटेंस। अफादिया बेटा जरा जल्दी से बनाइए। द ग्रोइंग टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। बेटा नहीं, इकरा 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 मेरी बात समझिए बेटा। हैज का मतलब होता है, मैं कहता हूं इकरा हैज अ फोन, तो इसका मतलब है इकरा के पास फोन है। इकरा बेटा मेरी आवाज आ रही है? मुझे जरा बताइएगा प्लीज बेटा, लेट मी नो। इकरा, एम आई ऑडिबल? मुझे जरा वॉइस पर आपका मैसेज नहीं बेटा, मुझे वॉइस पर अगर आप बताएं तो। वॉइस पर बेटा, अब आपने लिखा है जी सर, आपकी आवाज आ रही है। ठीक है। अच्छा बेटा, आपने लिखा है द ग्रोइंग टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हैज डबल एज स्वॉर्ड। बेटा, जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस होती जा रही हैं, यानी टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, हैज का मतलब होता है पोजेशन। तो ग्रोइंग टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के पास एक दो धारी तेज तलवार है। उसके पास, उसने जेब में रखी हुई है दो धारी तेज तलवार। बताइए। तो फिर बेटा यहां पर क्या आएगा? ये हैज तो गलत है ना, फिर क्या आना चाहिए? मरियम, आई एम नॉट गेटिंग एनी आंसर फ्रॉम यू मरियम, व्हाट इज द रीजन? हादी की तरफ से मुझे कोई आंसर नहीं मिल रहा यार, टॉपिक सेंटेंस तो बनाइए। अहमद कहाँ है? अहमद एक दो टेस्ट अच्छे देते हैं, बेहतर होते हैं, फिर गायब हो जाते हैं। अभी भी ऐसा ही है, अहमद क्लास में ही नहीं है। ओए होए। एहतशाम, व्हाट इज द टॉपिक सेंटेंस? एहतशाम, आप भी ट्रैक पर आ रहे थे लेकिन दरमियान में से गायब हो गए हो आप भी। वर्दा, जरा जिले हुमा जरा मुझे बताएं। रिका बेटा, लेट मी नो। अफादिया, what could be the topic sentence? The challenges have always been the driving force behind technological advancement. However, its negative impacts must be curbed through regulatory measures. ठीक है सर। है अल्लाह बेटा, हैव का भी वही मतलब है। बेटा हैव का भी वही मतलब, मैं कहता हूँ स्टूडेंट्स हैव, तो उसका मतलब स्टूडेंट्स के पास है। नहीं बेटा, यहाँ पर आएगा टेक्नोलॉजिकल, द ग्रोइंग टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन इज अ डबल एज स्वॉर्ड। बेटा इज आएगा। सर काइंडली फर्स्ट पैरा दिखा दें, वो देख लिया आपने? तो कोई मसला नहीं है मरियम, फर्स्ट क्लास में क्या होता है? फर्स्ट क्लास में बोलना मना होता है। यू शुड मेक द मिस्टेक्स, आई वांट दिस। ओनली देन आई विल बी एबल टू करेक्ट योर मिस्टेक्स, राइट? सो मेक अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स, कोई मसला नहीं। रिमशा लिख रही है एवरी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ब्रिंग्स बोथ, हाँ गुड वन। ठीक है रिमशा, अच्छा लिखा है। सर ऊपर बनाया है वो गलत बनाया है आपने। आपने लिख दिया इनोवेशन इज नेसेसरी, ये क्या बात है? प्रॉपर सेंटेंस बनाए ना। नो, ये गलत है बेटा। Afadi लिख रही टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस कम along with challenges thereby requiring effective measures, good one। जरक आपकी तरफ से नहीं मुझे आ रहा, where are you जरक? जरक या जर्क जो भी नाम है आपका, I'm sorry if I'm pronouncing it a little wrong, but please let me know। जर्क। अरसलान, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका अरसलान? आर यू गुड? जी अरसलान साहब फरमाइए, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ। अरिका बेटा, आपकी तरफ से मुझे कोई आंसर नहीं आ रहा, वाई? नूर किधर है आप बेटा? बेटा मुझे बार बार बताना पड़ेगा। आई एम टेकिंग योर नेम फॉर द सेकंड टाइम आई गेस। फिजा, एहतशाम, यार क्लास में ही हो, जिंदा हो, मौजूद हो इस दुनिया में? मनाहिल बेटा, आप भी जाग रही हैं या सो रही हैं, मुझे बताइएगा। यानी इतने नकम्मे हो जाते हैं आप सब कि मैं बार बार बोल रहा हूँ एंड यू आर जस्ट सिटिंग हियर लाइक नथिंग इज हैपनिंग। व्हाट आर यू डूइंग? प्लीज जल्दी, आपसे पहले बच्चे, आपके बाद में आकर बच्चे आपसे पहले लिख रहे हैं, ये तो गलत बात है। नो लिख रही है ह्यूमन सिविलाइजेशन इज रैपिडली मूविंग टुवर्ड्स टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन बट इट हैज मल्टीपल चैलेंजेस दैट मस्ट बी। नहीं बेटा, ह्यूमन सिविलाइजेशन इज मूविंग टुवर्ड्स,
बेटा हम मूव कर रहे हैं टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन की तरफ, ऐसा थोड़ी है। हमने मूव किया, हिस्टोरिकल फैक्टर यहाँ पर कहाँ है? हिस्टोरिकल आपने आइडिया तो बताया ही नहीं है, या हिस्टोरिकल रिफ्लेक्शन तो यहाँ पर है ही नहीं है। नूर गलत है, फर्स्ट पार्ट आपका टोटली गलत है यहाँ पे। ये मैं चाहता हूँ आप मिस्टेक्स करें, मैं इस वजह से नहीं आपको कहता कि आप करें और फिर मुझे आपकी मिस्टेक्स निकाल के मजा आता है, बल्कि मैं आपकी मिस्टेक्स इस वजह से निकालता हूँ कि आप करेक्ट हो सके। अब नूर आप यहाँ पर सीधा ये प्रेसी में लिख देती जाके टाइटल, टॉपिक गलत हो जाना था या नहीं? खुद जरा सोचिए, हुमा ने लिख देना था, गलत हो जाना था या नहीं? प्रेसी का बेड़ा गर्क हो जाना था वहां पे। किंजा लिख रही है टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन चैलेंज एथिकल वैल्यूज दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड। नो, इसे थोड़ा और बेहतर बनाया जा सकता बेटा। नहीं, ये बहुत शॉर्ट है, कुछ ज्यादा ही शॉर्ट है, और इतना शॉर्ट होने की वजह से इट इज नॉट एबल टू रिफ्लेक्ट आइडियाज। बेटा हम सिंपल बता सकते हैं कि टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस ने हमेशा ह्यूमन सिविलाइजेशन को ट्रांसफॉर्म किया है, बट एट द सेम टाइम सर्टेन चैलेंजेस भी ये लेकर आया है। हमने पहले यही बताया ना, यहाँ पर देखिए ना, इस पार्ट में हमने यही तो बताया कि टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस ने ह्यूमन सिविलाइजेशन को चैलेंज ट्रांसफॉर्म किया है। फिर हमने बताया कि चैलेंजेस भी हैं इसके, डिफरेंट टाइप ऑफ चैलेंजेस हैं, ठीक है। और फिर हम बता देंगे वे फॉरवर्ड कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से अब यहाँ ये तीनों आइडियाज आपके इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। ऑलराइट, मेरी बात आप जा रही है, मुझे बताइएगा जी। बनाइए, व्हाट इज योर क्वेश्चन? मैंने इस तरह बनाया था, वो लंबा ही होता जा रहा था, मैं छोटा छोटा कर रही थी, वो हो नहीं रहा था। मैंने कहा लंबा लिखूंगी, सर कहते छोटा कर दो, उसके बाद तो पीछे से वाला 2 लाइन्स पे चला गया था टॉपिक सेंटेंस। छोटा नहीं ना लिखना कि आप आइडियाज को एक्सक्लूड कर देना, ठीक है, एटलीस्ट सर ठीक। इतना भी एक छोटा नहीं आपने लिखना है टॉपिक सेंटेंस कि आप आइडियाज को, इतना लॉन्ग भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। द टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन पोर्ट्रेज यार, नहीं हादी, आई नो यू हैव अ वेरी गुड इंग्लिश, बट थोड़ा सा जरा देख लें। द टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन पोर्ट्रेज द डाइकोटोमी ऑफ एक्सट्रीम ग्रोथ इन स्फीयर एथिकल कंसिडरेशंस। नहीं, इसे आसान करो यार, आई डोंट वांट दिस। है वो, मैं डबल एच स्वॉर्ड लिखना नहीं चाह रहा था, वो किसने लिख दिया था, फिर मैं डाइकोटोमी लिख दिया। पक्की बात है, आपने लिखा है कि चैट जीपीटी से ये लिखवाया है? नहीं नहीं, ये डाइकोटोमी लफ्ज है बड़ा कॉमन। वो तो है, लेकिन मुझे लगा। सर वो कॉपी कैसे करना था इसको? All right. Technological advancement benefit human civilization, benefit humans in many terms, but also come with some challenges. ठीक ही है, बस अच्छा है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स एक्ट एज अ डबल एज स्वॉर्ड। देखो हादी, बात पता है क्या है, मेरा पॉइंट समझिएगा। डबल एज स्वॉर्ड जरूरी नहीं है कि अब आपके साथ 10,000 बच्चे अपीयर हो रहे हैं तो 9,000 अगर बच्चा डबल एज स्वॉर्ड लिख रहा है तो आप अगर लिखोगे तो आप गलत हो जाओगे। देखिए ये माइंडसेट हम सबको और स्टूडेंट्स को अपने माइंड से निकालने की जरूरत है। देखिए अगर 2+2 का आंसर आ ही 4 रहा है तो 10,000 बच्चा 4 ही लिखेगा ना, और 4 लिखेगा तो सही होगा। अब क्या होता है कि बच्चे नहीं लिखते 4, बच्चे लिखते हैं कि 6-2। मैं आपको अक्सर ये बताता होता हूँ, ठीक है। तो यही चीज है, यूनिक बनने के चक्कर में आप सबने या बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ऐसे ऐसे अल्फाज बता देते हैं जिसका कोई अक्सर औकात जो है अब गलत कर देते हैं। ये मैं यहाँ पर कहना अच्छा वर्ड पसंद करूंगा कि बच्चे गलत कर देते हैं। अब हादी ठीक है यार, डाइकोटमी ठीक है, कोई ऐसा चीज में मसला नहीं है, लेकिन वाई इज इट सो? क्या आपने पहले 10 दफा ये वर्ड अपनी प्रेसी में इस्तेमाल किया है? बताइएगा। सर एक ना गाना है उसका नाम, तो बेसिकली मुझे उधर से जेन में था कि ये दो चीजें अगर चल रही हो तो उनको डाइकोटोमी बोलते हैं। तो बस वो जेन में था, तो मैंने डाइकोटोमी लिख दिया आज। डाइकोटोमी कहते हैं, वो डाइकोटोमी ठीक वर्ड है, मुझे ये बिल्कुल सर सही। डाइकोटोमी दो चीजें मतलब जुदा रास्तों पर जा रही हूँ, सेपरेट पाथ पे, एक सीधा रास्ता जाती है, दोनों सेपरेट हो जाएं। मेरी आवाज आ रही है आपको? पहले तो मुझे ये बताओ, आवाज आ रही है? सॉरी सर, मैं बगैर माइक ऑन किए बगैर बोल रहा था। मेरी आवाज आ रही है आपको? मैं ये जी जी। डाइकोटोमी का वर्ड गलत नहीं है हादी, मैं पिछले 2 मिनट से यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप सुनिए प्लीज इसे। ठीक है वर्ड, लेकिन डाइकोटोमी क्यों आपने ये वर्ड यूज किया? डबल एज स्वॉर्ड कर सकते थे, अब आपने कहा सर दूसरे यूज करें, ठीक है। लेकिन क्या आपने अपने पेपर में ये पहले यूज किया वर्ड, या आपने हम्म, अपने ये जो बना रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल यूर इन द पेपर, यू मेकिंग द प्रेसी, तो क्या आपने डबल एज स्वॉर्ड यूज किया? द आंसर इज नो सर। तो आप कर जी लो सर यार, बिल्कुल। ठीक गलत है नहीं। सर। अगर 10,000 बच्चे भी इस्तेमाल करेंगे, एग्जामिनर ये चीज नहीं देखता कि आपकी, पता नहीं कौन लोग ये फैलाते हैं, माजरत के साथ बेवकूफ लोग होते हैं वो जो ये फैलाते हैं,
जी मुश्किल वर्ड्स इस्तेमाल कीजिए। अभी रिसेंटली मैंने एक स्टूडेंट का थीसिस स्टेटमेंट चेक किया, बल्कि मरियम का ही चेक किया। मरियम आपका ही थीसिस स्टेटमेंट चेक किया ना? अब मरियम कितने लाइनों पर आपका थीसिस स्टेटमेंट था? वो थीसिस स्टेटमेंट नहीं, वो थीसिस पैराग्राफ था पूरा। आई एम सॉरी टू से, आई एम नॉट टेकिंग ए हिट ऑन एनीबडी। ठीक है, जो पढ़ा रहे हैं दे आर डूइंग अ वेरी गुड स्टाफ। अल्लाह पाक उनके जरिए बहुत बच्चों को पास करे, बट सही पढ़ाना चाहिए। अब थीसिस स्टेटमेंट इज समथिंग एल्स, एंड थीसिस पैराग्राफ ही पूरा लिख दिया है जी, एक पेज का। वो थीसिस तो नहीं है। तो एट द सेम टाइम मुझे नहीं पता कौन ऐसे लोग हैं जो बताते हैं जी मुश्किल, प्रेसी में मुश्किल वर्ड्स नहीं, इंग्लिश में मुश्किल वर्ड्स इस्तेमाल ही नहीं होते। इंग्लिश में मुश्किल वर्ड्स इस्तेमाल रसल करते होते थे और ऑथर्स करते होते हैं। लेकिन जब आप अपना मैसेज कन्वे कर रहे हैं ना, तो कोशिश कीजिए। अच्छा मुझे एक बात बताएं, रसल हर बंदा पढ़ के समझ सकता है? हाँ जी रिका, जरा आप बताएं, यू शुड हैव एन आइडिया अबाउट इट। हर बंदा पढ़ के रसल को समझ सकता है? नो सर। क्यों? व्हाट इज द रीजन? ये रीजन भी जरा मुझे बताएं, रीजन भी बताइए। उनकी वोकैब थोड़ी सी डिफिकल्ट है। हाँ, उनकी वो कैब डिफिकल्ट है। अब द पॉइंट इज दिस कि जब आपकी भी वो कैब डिफिकल्ट होगी, आप कैसे बंदों के साथ अपना मैसेज कन्वे कर सकेंगे? लेकिन इंग्लिश इज अ पेपर ऑफ कम्युनिकेशन एवरीबॉडी। वो आपका एग्जामिनर ने इंग्लिश का पेपर रखा ही इसलिए कि वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को चेक कर सके। तो कम्युनिकेशन में तो आसान इंग्लिश इस्तेमाल होती है, कोई मसला नहीं है जी, डबल एज सॉर्ड यूज कर लें, कोई ऐसा इशू ही नहीं आ रहा। सही है, मेरी बात समझिएगा। ऐसे में भी आप ऐसा कर सकते हैं। बच्चे प्रैग्मेटिक का वर्ड नहीं नूर बेटा यूज करते, मैं भी नहीं था एक टाइम पे करता, बट मैं अपने आप से बातें करता होता था। फिर मैंने कहा कि यार प्रैग्मेटिक में गलत ही क्या है? क्यों नूर बेटा? क्यों फादिया? क्यों अरसलान? अरसलान आधा आधा घंटा लेट आते हैं, क्यों अरसलान? ऐसा ही है ना? तो प्रैग्मेटिक में जी सर। गलत क्यों है दिशा? प्रैग्मेटिक का मतलब तो बैलेंस्ड है। ठीक है। तो मैंने ना अपने आप से एक चीज डिस्कस की, और मैंने फिर एक टीचर से भी ये चीज कंफर्म की। मैंने सोचा, मैंने कहा ये वर्ड इतना कॉमन है, क्या पता दूसरे बच्चे यूज ही ना करें। तो मैं ये यूज कर लूंगा, तो मैं तो ऑटोमेटिकली एक सिंपल वर्ड लिख के यूनिक भी हो जाऊंगा। क्यों जरा, मेरी बात समझ आ रही है? मुझे बताइएगा, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिएगा। जरा जरा किधर है रिमशा? मैंने अपने आप से ये चीज का डिस्कशन किया। मैंने कहा कि देखिए जी, प्रैग्मेटिक इतना कॉमन वर्ड है, क्या पता बच्चे यूज ही ना करें। ऐसा और ऐसा होता है। प्रैग्मेटिक बच्चे यूज, आप में से भी नहीं बच्चे यूज करते। ठीक है। अब मैं तो प्रैग्मेटिक ही करता हूँ जी, कुछ भी हो, मैं तो प्रैग्मेटिक ही करता हूँ। मैंने तो एक वर्ड को अपने पास रखा हुआ है, आज यूज सर कर। आपको याद होगा हमने पीएमएस के दिनों में ना मैं कहा था कि जो कुछ लफ्ज बहुत रिपीटेडली यूज होते हैं ना उनके कुछ सिनोनिम्स कर लो। तो मैंने कुछ ये काम भी किया हुआ है, शायद इस वजह से ऐसा हो जाता है। मैंने की हुई है इस तरह की चीजें। उन्हीं दिनों की हैं पीएमएस के दिनों की, जब आपने वो हमें एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा वर्ड्स करवाए थे हर चीज के, ऐसे के लिए स्पेशली। दैट इज गुड थिंग, अच्छी बात है यार, मैंने करवाए होंगे, मुझे तो अब याद नहीं है। लेकिन ये है कि मैं आपको यही सिंपल चीज बताऊंगा कि हादी जहां पर सिंपल वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं, सिंपल वर्ड्स यूज करो। डिफिकल्ट वर्ड्स नहीं आपने करने इस्तेमाल, ठीक श्योर है? सर। तो इससे आप कभी भी एग्जामिनर को आप मुझे नहीं इम्प्रेस कर सकते, आपने एग्जामिनर को क्या करना है? ठीक है, मैं तो 4 साल 3 साल से पढ़ा रहा हूँ, 3 से 4 साल से। एग्जामिनर तो 25-25 साल से पेपर चेक कर रहा है, हमारी इतनी उम्रें नहीं है जहां से जब से वो पेपर चेक कर रहा है। तो ये है कि वी कैन नॉट इम्प्रेस एग्जामिनर, इसलिए सिंपल वर्ड्स इस्तेमाल कीजिए। वो हाँ एग्जामिनर को इम्प्रेस करता है। और जी आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। टॉपिक सेंटेंस आप सबने बनाने की कोशिश की, दैट वाज अ वेरी गुड अटेम्प्ट। सिंपल यहाँ पर बता सकते हैं कि टेक्नोलॉजी ने ह्यूमंस को ट्रांसफॉर्म किया, ह्यूमन सिविलाइजेशन को। एट द सेम टाइम इसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज भी हैं, और उन्हें काउंटर करना चाहिए। सिंपल आप देखिए मनाहिल बेटा टॉपिक सेंटेंस बना सकते हैं। मनाहिल मेरी बात समझ आ रही है? अब देखिए मनाहिल, मैंने सिंपल आइडियाज को प्रेजेंट कर दिया, छोटा भी मेरी टॉपिक सेंटेंस बन गया, राइट? रिमशा बेटा मेरी बात समझ आ रही है आपको? लेट मी नो। आप में से कुछ ने ऐसे बनाया, कुछ ने वर्ड्स को या थीम को रिटेन किया, दैट वाज अ गुड थिंग। ठीक है। अब आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, व्हाट आई वांट कि आपने इसके 5 टाइटल्स बनाने हैं। अच्छा 5 टाइटल्स मैं इस वजह से आपको कहता हूं कि आपकी जरा माइंड, आप चैट जीपीटी भी इस्तेमाल करते हैं कुछ बच्चे, मैंने देखा इस चीज को, ठीक है कोई मसला नहीं है। लेकिन जब आप 5 एंगल्स या 5 डिफरेंट सिनेरियो से इसके टाइटल्स बनाते हैं ना, तो क्या होता है कि स्टूडेंट्स आप सबको एक बड़ी डाइवर्सिफाइड रेंज ऑफ अंडरस्टैंडिंग होना शुरू हो जाती है, जो कि एक अच्छी चीज है। ठीक है। और एक चीज और स्टूडेंट्स, टाइटल आप हमेशा फ्रेज की फॉर्म में बनाएंगे। टाइटल कभी भी आपका सेंटेंस की फॉर्म में नहीं बनेगा। एहतशाम, कुछ बच्चों ने ऐसे बनाया हुआ था, मेरे ख्याल से नूर ने भी शायद बनाया था, एक कुछ ने बनाया हुआ था। तो आपका जो टाइटल है वो कोशिश करें कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस, सेंटेंस की फॉर्म में ना ही हो, बल्कि फ्रेज की फॉर्म में, 3-4 लाइंस की फॉर्म में यानी 3-4 वर्ड्स की फॉर्म में
हो सकता है। ओके मनाहिल बेटा, हो जाएगा ये काम? बताइएगा, विल यू बी एबल टू डू दिस एवरीबॉडी? जी मुझे बताइएगा स्टूडेंट्स, कर लेंगे? आगे बढ़े। अच्छा जी, होमवर्क क्या है कि कंप्रीहेंशन जो है ना 2023 की, ये आपने करनी है, ठीक है। देन आपके पास आ जाता है जी करेक्शन। करेक्शन है, यस करेक्शन है, 2023 की है, दो तीन मैं करवाऊंगा, ठीक है, बाकी आप सबने खुद करना है, ठीक है। अच्छा, और एक काम और किया करें, देखिए स्टूडेंट्स, जब हम एक करेक्शन करते हैं ना, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर एक करेक्शन को पढ़ेंगे, ठीक है, और एक सेंटेंस को पढ़ेंगे एंड देन हम मिलकर उसकी करेक्शन को करेंगे। तो स्टूडेंट्स आपने पता है क्या करना है, आप अगर यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं ये करेक्शन कर रहा हूँ 6 सेंटेंस की, और मैं यहाँ पर एक नया रूल सीखता हूँ, तो मैं उसे सिर्फ अपने पास याद नहीं रखूंगा, क्योंकि मुझे पता है बाय द टाइम पेपर आएगा मैं भूल जाऊंगा। बाय द टाइम एमपीटी आएगा, एमपीटी में भी तो इंग्लिश है ना, 60 मार्क्स की है, तो मरियम क्या होगा कि बाय द टाइम एमपीटी आएगा मैं इसे भूल जाऊंगा रूल को। तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने पास इंग्लिश के रजिस्टर में रूल लिख लूंगा कि अच्छा जी ये हो तो ऐसे होता है, ताकि मुझे ये रूल बाद में कभी याद करने में आसानी हो, ठीक है। तो ये काम आप सब ने, ये काम सब आप सब किया करें, एंड प्रपोजिशंस का भी। ऑलराइट जी, विद दैट बीइंग सेड आइए जी फर्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। इकरा बेटा पहला वाला सेंटेंस पढ़िएगा कि फर्स्ट वाला करेक्शन का क्या सेंटेंस है। His knowledge of language and international relations aid him in his work. अच्छा, अब स्टूडेंट्स देखिए, जब भी आपने कोई जुमला दुरुस्त करना है या जब भी आप कुछ इंग्लिश लिख रहे होते हैं, तो आपने सबसे पहले सब्जेक्ट का ध्यान रखना है। आपने अगर सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर दिया ना, तो बहुत दफा मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स आपके पास जो इशू आता है ना, वो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का ही होता है। अब यहां पर आप देखिए, तो मुझे आप में से कोई बता सकता है कि सब्जेक्ट क्या है? लैंग्वेजेस सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट काम करने वाला जो होता है, ठीक है जी, मुझे बताइएगा सब्जेक्ट क्या है? नॉलेज, नॉलेज इज सब्जेक्ट। रिमशा कह रही है सर जी नॉलेज इज सब्जेक्ट। अरिका क्या सब्जेक्ट है, जरा रिमशा को बताएं, रिमशा तो गलत यहाँ पे बात कर रही हैं, अरिका हमें सही बताएंगी। हाँ जी अरिका क्या नो है? सर, नॉलेज है। नॉलेज नहीं है? अच्छा, वर्दा कह रही है नॉलेज नहीं है। हिज है सब्जेक्ट, वेरी गुड, नॉलेज ऑफ लैंग्वेजेस हिज है। प्रोनाउन यूज हुआ है हिज। बेटा वो छोड़ दे, मैं बिल्कुल इस चीज पर ईमान है मेरा कि प्रोनाउन यूज हुआ है, मैं ईमान की हद तक जा रहा हूँ, लेकिन मुझे बताएं कि सब्जेक्ट क्या है। मैं सब्जेक्ट सर की बात, नॉलेज ही है। तो सॉरी, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है जी। चलिए मैं आपको बता देता हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो मेन सब्जेक्ट है ना, दैट इज नॉलेज, हिज नहीं है, ठीक है। नॉलेज इज द मेन सब्जेक्ट, ठीक है, इज द मेन आइडिया, आप कह सकते हैं, अराउंड विच द सेंटेंस रिवॉल्व्स, ठीक है। सब्जेक्ट इज ऑल्सो द मेन आइडिया, जिसके इर्द गिर्द पूरा सेंटेंस का आइडिया रिवॉल्व करता है या मूव करता है। अब यहाँ पर नॉलेज इज द मेन, एवरीबडी नॉलेज इज द मेन सब्जेक्ट। अच्छा, अब आपने यहाँ पर देखना है कि सर जी ये नॉलेज ऑफ लैंग्वेजेस जो है, ठीक है, ये नॉलेज इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट एट द सेम टाइम, याद रखिएगा स्टूडेंट्स, प्लीज मेमोराइज दिस एंड कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि नॉलेज इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट। अच्छा, नॉलेज जब आप सबके पास एवरीबॉडी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब आता है वो भी सिंगुलर होना चाहिए। एम आई करेक्ट एवरीबॉडी, मुझे बताइएगा। यस सर। यस। अब मुझे तो ये नहीं समझ आती कि अभी जिसने यस या नो कहा है वो यस कह रहा है या नो कह रहा है, ये कौन है, वर्दा है? मुझे वर्दा आपकी ये नहीं समझ आ रही है, अगर आप हैं ये तो ये आप यस कहती हैं या नो, वो आपके नो कहने की वजह से मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ कि मैं वाकई गलत बोल रहा हूँ। तो लिख दिया करें या थोड़ा माइक को एडजस्ट कर ले अपने, ठीक है वर्दा। अच्छा, अब ये है कि याद रखिएगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आता है। अच्छा, अब आपको लगता है कि सर जी एड, एड जो है यहाँ पर एक वर्ब है, ठीक है, लेकिन इट इज नॉट अ सिंगुलर वर्ब। दरअसल यहाँ पर जो आएगा वो आएगा एड्स, एड्स इज अ सिंगुलर वर्ब, ठीक है। सो ये आपके पास यहाँ पर दुरुस्त होगा, द नॉलेज ऑफ हिज नॉलेज ऑफ लैंग्वेजेस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस एड्स हिम इन हिज वर्क, ठीक है। सो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आएगा, एंड सिंगुलर वर्ब आपके पास एड्स होता है, ना कि एड होता है। ऑल राइट एवरीबडी, यहाँ तक ये सेंटेंस। अब यहाँ पर आपने एक चीज याद रखनी है, हमने सबसे पहले आपने देखना है कि कोई भी जो सेंटेंस है वहां पर सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करके देखना है कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है, और फिर उसी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आएगा, ठीक है। तो ये चीज आप सबने याद रख लेनी है। ओके, क्लियर है स्टूडेंट्स, यहां तक मुझे बताइएगा कोई सवाल, ये इस सेंटेंस
इसकी करेक्शन में अगर कोई, अगर आपके पास कंफ्यूजन है तो डू लेट मी नो। क्लियर है आप सबको? जल्दी जल्दी जरा मुझे बता दें जी। अफादिया क्लियर है? चलें अफादिया बेटा आप ये नेक्स्ट सेंटेंस तो पढ़ें। The ambassador with his family and staff invite you to a reception at the embassy on Tuesday afternoon. अच्छा ये भी आपके पास ऊपर वाला ही है। अब मुझे आप सबसे पहले बताइए कि सब्जेक्ट क्या है? सर जी सब्जेक्ट तो एम्बेसडर है। अच्छा एम्बेसडर सिंगुलर है कि प्लूरल है? आइए जल्दी से इसे परफॉर्म करते हैं ताकि हम आगे मूव ऑन कर सकें। जल्दी से मुझे बता दीजिए कि ये जो है दिस इज द सब्जेक्ट, और क्या ये सिंगुलर है या प्लूरल है? जी मुझे बताइए, सिंगुलर है? सर ये सिंगुलर है। सिंगुलर है, ओके। और बिकॉज ये सिंगुलर है तो आपके पास जो वर्ब है वो तो ऑब्वियसली इनवाइट है, तो ये भी सिंगुलर हो जाएगा, इनवाइट्स आ जाएगा। वेरी गुड मनाहिल, आपने बिल्कुल दुरुस्त से क्रैक किया। दिस इज गुड वन। चलिए एक मैं और आपके साथ करूंगा, दिस वन, ठीक है? इजी इजी मैं आपके साथ कर लेता हूँ, मुश्किल मुश्किल आपको दे देता हूँ, ठीक है? अच्छा वैसे ये भी इजी है, डोंट वरी, ठीक है? ये बहुत इजी है, ये आप इसे एक दफा पढ़ेंगे ना। आई एम टू टायर्ड दैट आई डू नॉट हंट वर्ड्स एंड इडियम्स इन माई इंग्लिश बुक। अब इसे देखिए, आप इसे पढ़ेंगे ना, आपको पढ़ के याद आप समझ आ जाएगा कि ये गलत है या नहीं। क्या संत है, क्या यहाँ पर करेक्शन हो सकते हैं? दिस ईयर ही विल सिट इन द CSS एग्जाम, क्या गलत है यहाँ पर? अब यहाँ पर सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट का कोई मसला नहीं है, बट यहाँ पर देयर इज अनदर इशू। क्या हो सकता है वो? कैन यू टेल मी? दिस ईयर ही विल सिट इन द CSS एग्जामिनेशन नहीं होता, फॉर द एग्जामिनेशन होता है, ठीक है? सिट फॉर द, ओके, फॉर द एग्जामिनेशन होता है, फॉर द CSS एग्जामिनेशन या फॉर CS, फॉर द CSS एग्जामिनेशन, ठीक है? सो ये आप यहां पर देख लीजिएगा, सिट इन द एग्जामिनेशन कभी नहीं होता, सिट फॉर द एग्जामिनेशन होता है। सही है? ये आप देख लीजिएगा। बाकी ये चार आप खुद कर लीजिएगा जी, ये सिंपल सिंपल से हैं। सो मेक श्योर टू डू दिस। और यहाँ पर जो भी आपको नहीं समझ आता मुझसे आप लास्ट में पूछिएगा, ठीक है? और अगर आपको समझ आ जाता है एंड इफ यू गेट टू नो न्यू रूल, तो आप उसे प्लीज अपनी एक इंग्लिश की बुक बना लें, ठीक है? अभी फायदा रहेगा एक भी डेली का, अगर आप वहां पर रूल लिखते जाएंगे तो बाय द टाइम आप एमपीटी में जाएंगे आपके 80-90 रूल्स या उससे भी ज्यादा रूल्स हो चुके होंगे, ठीक है? एमपीटी किस तारीख पे है मुझे बताइएगा? कब है जी एमपीटी आपकी? सर 7 या 9 सितंबर को शायद। सर 27 सितंबर। नंबर को आ रही है एमपीटी? नहीं, कंफर्म करके जरा मुझे बताएं, क्योंकि मुझे एक महीने पहले आपके साथ एमपीटी की तैयारी स्टार्ट करनी है ना, तो इस वजह से। सर कंफर्म है 27 सितंबर। 27, हाँ तो 27 अगस्त से तैयारी स्टार्ट कर देंगे एमपीटी की, ठीक है? 27 अगस्त से हम अपने एमपीटी की तैयारी स्टार्ट कर देंगे। अच्छा कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर जी एमपीटी में हम पास होंगे या नहीं? आप में से कुछ ऐसे बच्चे जो कि लास्ट ईयर भी एमपीटी में गए थे और वो पास भी हुए थे, ठीक है? एक महीना इनफ होता है उन सबको, मैं ये बताना चाहूंगा, और जो बच्चे गए थे उन्हें पता ही है कि 1 मंथ इज सफिशियंट। 27 सितंबर को एग्जाम है और 3 अगस्त को आ जाएगा, आएगा 20 अगस्त तक, ऑलराइट, ठीक है? जब मैं अपियर हुआ था ना तो तब भी यही हमारा स्केजुअल था। 17 अगस्त आखिरी डेट थी अप्लाई करने की, नहीं, 22 अगस्त आखिरी डेट थी अप्लाई करने की, यानी आसपास ही था। 3 अक्टूबर संडे को हमारा एमपीटी हुआ था, एंड देन 1 फेब को पेपर था, 1 फेब 2023 को। खैर आगे बढ़ते हैं जी, प्रपोजिशंस की जाने मूव करते हैं, ये प्रपोजिशंस को करते हैं। द नेबर्स केम डैश माई होम टू सी व्हाट्स गोइंग ऑन इन द हाउस। स्टूडेंट्स क्या लगता है आपको? सारे जरा अपना मुझे एक गेस दीजिए। द नेबर्स केम टू माई हाउस टू सी व्हाट इज गोइंग ऑन इनसाइड माई होम। जी क्या हो सकता है यहाँ पर? देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर बड़ा सिंपल है जी। द प्रपोजिशन जो यहाँ पर इस्तेमाल होगा वो होगा जी टू। अच्छा अब यहाँ पर टू क्यों इस्तेमाल होगा, ठीक है? ये एक मेन क्वेश्चन आता है। अच्छा स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जब भी कोई डेस्टिनेशन की हम बात करते हैं ना, कि किसी प्लेस की बात करते हैं, तो हमने टू ही लगाना है नूर बेटा। कभी भी किसी, जैसे मैं कहता हूँ जी आई एम गोइंग टू लाहौर, आई एम गोइंग टू कराची, ठीक है? तो यहाँ पर भी देखिए द नेबर्स केम टू माई होम, यानी दे अराइव्ड एट अ डेस्टिनेशन, दे केम टू अ डेस्टिनेशन, तो दैट्स व्हाई टू का इस्तेमाल होगा। शी सेड डैश द शेड ऑफ द ट्री। अच्छा ये तो बड़ा सिंपल है, ये तो आप सबको पता होना चाहिए। हाँ जी ये जरा बता दें। शी सैड सैट डैश द शेड ऑफ द ट्री। अंडर, अंडर आएगा या इन आएगा? ये तो बताएं जरा मुझे। अच्छा कुछ बच्चे कहते हैं सर जी अंडर आएगा, अंडर गलत है, इन आएगा, ठीक है? अब ऐसा क्यों है, ठीक है? इन द शेड ऑफ द ट्री, इन द शेड जो है ना, इन द शेड, ये आपके पास एक फिक्स्ड कोलोकेशन होता है। फिक्स्ड कोलोकेशन से मुराद है कि इन द शेड यानी
द शेड से पहले हमेशा इन नहीं आता है, अंडर नहीं आता कभी भी। ठीक है, तो जहां पर भी द शेड देखें, आप ब्लाइंडली इन जाकर पुट अप कर दीजिए, वो सही हो जाएगा। सही है, इसे फिक्स्ड कोलोकेशन भी आप कह सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ ही एक फिक्स्ड एक्सप्रेशन भी आप कह सकते, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, सो इन आता है। अरसलान ओके, बिलो? और नहीं बेटा, बिलो क्यों आएगा? बिलो क्यों आएगा? बिलो, जस्ट शी सैट बिलो द शेड, और नहीं बेटा, बिलो नहीं आएगा, कोई खुदा का खौफ करें। इन या अंडर में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, लेकिन इन, बेटा मैंने आपको बताया द शेड के साथ हमेशा इन इस्तेमाल, ये फिक्स चीज है। दिस इज अ फिक्स्ड कॉलोकेशन। फिक्स कॉलोकेशन कहते हैं कुछ ऐसे अल्फाज जिनके साथ कुछ अल्फाज फिक्स्ड होते हैं। ठीक है, तो इन द शेड इज द फिक्स्ड, इज फिक्स्ड। अच्छा, द मून डज नॉट शाइन, अब ये बताइए डैश इट्स ऑन लाइट। हाँ जी अरसलान, आप जरा ये मुझे लिंग्विस्टिक्स वाले तो बताएं, ये लिंग्विस्टिक्स वाले हैं ना आपके, लिटरेचर वाले हैं, किधर हैं ये गए? हाँ जी, लिंग्विस्टिक्स वाले बताएं तो सही जरा। द मून डज नॉट शाइन डैश इट्स ऑन लाइट, अरिका क्या आएगा? फादिया क्या आएगा, जरा बताएं। अरसलान, हुमा, ये लिंग्विस्टिक्स वाले तो बताएं ना। सर मैं लिंग्विस्ट, लिटरेचर वाला हूँ, लिंग्विस्टिक वाला नहीं हूँ। चलो लिटरे इंग्लिश तो पढ़ी है ना। इन विद, सर मैं भी लिंग्विस्टिक्स वाली हूँ। अल्लाह सुब्हान व ताला, आप लिंग्विस्टिक्स वाली हैं? ओ माय गॉड, और इकरा इतना इंग्लिश का बुरा हाल। मेरे जैसा बंदा बायोलॉजी हो गया, उसकी इंग्लिश सही है, और आप क्या कर रहे हैं इकरा? लिंग्विस्टिक्स वालों की तो आपने, मैं क्या बोलूंगी, उनकी तो आपने बुरी हालत कर दी है। विद, बाय, इन और विद, लिटरेचर मेजर। चलें जी, कोई नहीं। मरियम क्या आएगा बेटा, आप भी बताएं। किधर हैं अस्वाद, वरदा क्या आना चाहिए? जोया बेटा, व्हाट डू यू थिंक? हादी आप भी बताओ यार, क्या आना चाहिए यहाँ पर? एहतशाम, एहतशाम तो ऐसे खामोश बैठे हैं कि एहतशाम आपका जैसे गलत आंसर आएगा तो मैं तो आपको गोली मार दूंगा। क्यों एहतशाम, ऐसे ही है ना? बताओ जरा। बेटा गलत है ना, तो सीएसएस में पास होने के लिए ग्रामर चाहिए, बाइट से ऑनलाइट होगा। अच्छा स्टूडेंट्स, इन भी नहीं होगा, विद भी नहीं होगा। ठीक है, दरअसल यहाँ पर होगा द मून डज नॉट शाइन बाय इट्स ऑन लाइट। ठीक है, अब बाय यहाँ पर क्यों इस्तेमाल होगा? ठीक है, इस चीज को आपने जरा देख लेना है। ठीक है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि जब कभी भी आप, ठीक है, किसी बिलोंगिंग की बात करते हैं तो फिर बाय इस्तेमाल होता है। ठीक है, इस चीज को समझिएगा। अब यहाँ पर देखिए, द मून डज नॉट शाइन बाय इट्स ऑन लाइट, यानी मून की अपनी लाइट की बात हो रही है ना, कि मून अपनी लाइट में कभी भी नहीं चमकता। ठीक है, तो स्टूडेंट्स बिकॉज यहाँ पर मून के अपनी पोजेशन की या बिलोंगिंग की बात हो रही है, तो बिलोंगिंग की जब कभी बात होती है तो आप बाय का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, द मून डज नॉट शाइन बाय इट्स ऑन लाइट इज द करेक्ट वर्ड। विद नहीं, ठीक है, इन भी नहीं। उसके बाद द बर्गलर जम्प्ड डैश द कंपाउंड वॉल। अच्छा स्टूडेंट्स, ये ओवर आएगा, आपने पढ़ा हुआ है ओवर का यूज, मैं अब ओवर का यूज आपको यहाँ पर नहीं बताऊंगा। ओवर आएगा ना, ऐसा ही है ना, बिल्कुल जी, ओवर आएगा। उसके बाद है जी, शी एंटर्ड डैश एन अग्रीमेंट विद देम, इन टू एन अग्रीमेंट आएगा जी। ठीक है, क्योंकि आपके पास याद रखिएगा कि एंटर इन टू एन अग्रीमेंट जो है ना, ये आमतौर पे जब भी दो पार्टी से एक एग्रीमेंट पर पहुंचती हैं, हमने पहले भी पढ़ा था, तो तब इस्तेमाल होता है। ठीक है, बाकी ये तीन आप सबने खुद करने हैं। हो जाएंगे ये तीन, जरा जल्दी से बता दीजिए मुझे। जम्प्ड इनटू, जम्प्ड इनटू, बेटा जम्प्ड इनटू तो है ही नहीं है, सेंटेंस की सेंस तो समझे। द बर्गलर जम्प्ड डैश द कंपाउंड वॉल, बेटा कंपाउंड दीवार में कैसे कोई छलांग मार सकता है, मुझे तो ये नहीं समझ आती। रिमशा, कैसे कोई दीवार, ये दीवार है, तो दीवार के अंदर, यानी इनटू का मतलब होगा दीवार के, बेटा दीवार के अंदर कोई कैसे छलांग मार सकता है, ये बताएं जरा मुझे। हैं, कैसे दीवार के अंदर, यानी वो ईंटें खोल खोल के सीमेंट में अंदर चला जाएगा, इसका तो ये मतलब है ना। तो द बर्गलर जम्प्ड ओवर होगा, ऊपर से जब जंप करते हैं, जब ऊपर से हमारी कोई चीज गुजरती है और हमसे टच नहीं होती, तो उसे ओवर कहा जाता है। समझिएगा इस चीज को। ठीक है, और अब देखिए ना, बर्गलर जम्प्ड ओवर, यानी जब भी हमारे ऊपर से कोई चीज गुजरती है और वो हमें टच ना करे, तो उसके लिए हम ओवर का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। अब बर्गलर साहब ने भी, ठीक है, चोर साहब ने भी ऊपर दीवार के जंप किया, एंड उनका जो सरफेस है वो दीवार के साथ, यानी दीवार की सरफेस चोर के साथ टच नहीं हुई, तो ओवर का वर्ड यहाँ पर इस्तेमाल होगा। सही है, अब स्टूडेंट्स की ट्रांसलेशन और कॉम्प्रिहेंशन हो जाएंगे, मुझे कब तक ये मिल जाएंगे सुबह, मुझे बताइएगा।
आपके लिए जो मैं डेड टाइम रख रहा हूँ, एक फाइनल टाइम रख रहा हूँ, वो 9 बजे, 5 बजे है। ठीक है, चलें थोड़ा और टाइम दे देता हूँ, 7 बजे तक सुबह भेजते हैं, दिया करें। लेकिन 7 बजे के बाद अगर कोई भी भेजेगा तो मैं उसका काम एक्सेप्ट नहीं करूंगा। द थिंग इज दिस कि स्टूडेंट्स, मैं आपको सबको, प्लीज अरसलान, आई वांट दिस, ठीक है। द थिंग इज दिस कि अब जिन बच्चों ने मुझे 12 बजे के बाद कल रात को टेस्ट दिया, मैंने उनका चेक नहीं किया, ठीक है, और मैं करूंगा भी नहीं। ओके, तो सिंपल इज दिस कि यू हैव टू फॉलो द टाइम। अभी अगर 6 महीने रह गए, अगर अभी हम टाइम नहीं फॉलो करेंगे तो अब हम कब फॉलो करेंगे? तो जी बेटा, सुबह 7 बजे तक, ओके, ठीक है। लेकिन अगर 7 बज के 1 मिनट भी आपका होता है तो मैं उसे चेक नहीं करूंगा, ठीक है। अब फिर आप कहते रहें कि सर प्लीज चेक कर लें, आई विल नॉट बी चेकिंग योर वर्क, ठीक है। इट साउंड्स मोर पोइटिक सॉफ्ट। व्हाट व्हाट साउंड्स मोर पोइटिक एंड सॉफ्ट? जी, क्या बेटा, क्या पोइटिक एंड सॉफ्ट साउंड कर रहा है? हुमा, वुड यू लेट अस नो, सो दैट हमारे भी थोड़ा इल्म में इजाफा हो जाए बेटा। सर शॉर्ट स्टोरीज में अंडर द टेबल लिखा होता है, अच्छा अच्छा अच्छा, ये बता रहे हो। सर शॉर्ट स्टोरीज में अंडर द टेबल लिखा होता है, ठीक है, हो सकता है यार ये फिर, ठीक है, अंडर द टेबल होता है। ओवर, अंडर द टेबल देखो, वो पता है क्या है कि आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है। अंडर द टेबल व्हेन यू आर लुकिंग फ्रॉम अबव, ठीक है, देन यू विल से अंडर द टेबल। लेकिन व्हेन यू आर लुकिंग फ्रॉम बिलो, देन यू विल से ओवर द टेबल, ठीक है। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं कहूंगा द द टेबल, ठीक है, या एक हमारे पास कुर्सी, एक चेयर है, एक बुक है, और बुक के ऊपर टेबल है, तो मैं क्या कहूंगा? लाइक आई एम टॉकिंग फ्रॉम द परस्पेक्टिव दैट इज बिलो, आई विल से द टेबल इज ओवर द बुक, ऐसे ही है ना। तो और जब अगर मैं किताब ऊपर रख दूंगा तो फिर मैं यही कहूंगा, ठीक है, अंडर द टेबल, या कुछ इस तरीके से जो आपने यहाँ पे बताया। खैर पर्सपेक्टिव्स हैं यहाँ पे डिफरेंट। अच्छा खैर, आप सबने सिंपली क्या करना है कि ये 7 बजे तक प्लीज मुझे सबमिट करवा दीजिएगा काम। यू हैव 24 आवर, 12 आवर्स, सो प्लीज सबमिट करवा दीजिएगा काम। आई विल चेक इट, एंड टमोरो हमारी ऐसे की क्लास होगी। ऐसे की क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे ऐसे वगैरह को। एंड आपके एसेस जो हैं, अभी 2 ऐसे सिर्फ चेक हुए हैं, बाकी मैंने नहीं थे किए क्योंकि मुझे पता था कि आज प्रेसे की क्लास है, तो मैंने कहा चलें थोड़ा रिलैक्स होकर कर लूँगा। आज आप सुबह तक आपके प्रेसी का काम जो है वो चेक, ऐसे का काम चेक होकर आपको मिल जाएगा। एंड कल हम उसे क्लास में एक नए ऐसे को डिस्कस भी कर लेंगे। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस देन प्लीज लेट मी नो, ताकि मैं आपको ये क्वेश्चंस को एड्रेस कर सकूं। अगर आप सबको समझ आ गया तो प्लीज राइट यस सर, सो दैट आई कैन एंड द क्लास। समझ आ गया आप सबको? ऑलराइट जी, देन आई एम एंडिंग द क्लास। आप सबके साथ एबिलिटी की क्लास में मुलाकात होती है। आज हमने रेशो को पढ़ना है, तो हम उसमें जो है डिस्कस कर लेंगे चीज़ों को। गॉड ब्लेस यू।